اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله شافع محمد وذرياته وأزواجه وأصحابه أجمعين وأمته كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على رسول الكريم رحمة للعالمين وشفاعة للمسلمين ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه فأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك رحمة للعالمين شافع المؤمنين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وذريته فأصلح بهم أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك رحمة للعالمين شافع المؤمنين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وذريته وأزواجه وأصحابه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك رحمة للعالمين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على رسول الكريم رحمة للعالمين وشفيع المذنبين ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأزواجه وأصحابه أجمعين وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك رحمة للعالمين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وذرياته وأزواجه وأصحابه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم علماء کرام، معزز سامعین حضرات، میرے بزرگ و دوست، مزید بچوں، پیدا نشین مابین،
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुबारक मजलिस उर्स कुल सालाना मजलिस उर्स कुल है और ये हमारे चौथे मुर्शिद हज़रत मौलाना शाह सुल्तान मुफ्ती रफ़ीक़ुल औलिया हज़रत सामद सिंगापुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये सालाना उर्स कुल मजलिस है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोग को इसमें शिरकत का मौका अता फरमाया, इसकी सआदत हमें नसीब हुई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लईबा, जिन लोगों ने अपने दीन को लहव व लईब बना लिया, खेल कूद बना लिया, व ग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनियावी जिंदगी ने उनको धोखे में डाल दिया। फल्यौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा, बस उस दिन उन्हें हम भुला देंगे जिस तरह उन्होंने उस दिन की मुलाकात, अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात से, उस दिन सामने जो पेश होना है उस दिन से, वमा कानू बिआयातिना यजहदून, और हमारी आयतों का जो इनकार करते थे। कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में जो बताया है, इसमें दो तीन बातें ऐसी बताई जिन्होंने दीन को खेल कूद बना लिया, अपने हिसाब से लोगों ने उसको चलाना शुरू कर दिया। वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और ये ऐसा इसलिए भी हुआ कि दुनियावी जिंदगी ने इनको धोखे में डाल दिया। दुनिया की नुमाइश ने, दुनिया के रुपए पैसे ने, दुनिया के जाहो जलाल ने, दुनिया की जो चीजें हैं, जो मैदान है, अपनी तरफ खींचने लगे। फल्यौमा, बस आज का वो दिन, नंसाहुम, हम उन्हें भुला देंगे, कमा नसू, जैसा कि उन्होंने भुला दिया, लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा, अपने आज के इस दिन की मुलाकात को, जो हमसे मिलना है, अल्लाह तबारक व तआला से जो मुलाकात का दिन है, क़यामत के दिन, हश्र का दिन, महशर का दिन। পীরবাজারের মধ্যে কোনো ডাক্তার আছেন কিনা? এখানে মা বোনদের মহিলাদের প্যান্ডেলের মধ্যে একজন মহিলা অসুস্থ আছে, মহিলাদের মধ্যে लड़का बगल में बेलोरा शहर में दिल शरीफ ونبينا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में जो इरशाद फरमाता है, वो यही बताता है कि अपने दीन को जिन लोगों ने खेल कूद बना लिया, और उसकी वजह क्या है, इस तरह से उन लोगों ने बनाया कि दुनियावी जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाल दिया। दुनियावी जिंदगी ने कैसे धोखे में डाला? धोखे में डालने की वजह क्या है? इंसान जो है, सामने की जो चमक दमक है, नुमाइश है, आलाइश है, इन तमाम चीजों को सामने देखता है कि वो हमसे बेहतर है, वो हमसे ज्यादा पैसे वाला है, ज्यादा गाड़ी वाला है, गाड़ी वाला है, जमीन जायदाद वाला है। इस वजह से आदमी उसकी तरफ ज्यादा रुझान उसका होता है। और दुनिया में चूंकि यही सारी चीजें हैं जो जायदाद है, यही सारी चीजें हैं जो काम आने वाली हैं, इसलिए जाहिरी चीजों पर इंसान की जो नजर पड़ती है, इसकी वजह से वो धोखा खाता है। और बातिन की जो चीजें हैं, जो पोशीदा चीजें हैं, आने वाली कब्र की जिंदगी, हश्र की जिंदगी, महशर की जिंदगी, चूंकि वो देखा नहीं है इंसान, इसलिए वहां से वो बेखबर होता है। और उसकी बेखबरी की वजह से आदमी क्या है कि वो परेशान हो जाता है, और परेशान होकर के फिर आदमी कभी कभी ऐसा होता है कि सीधे रास्ते पे चलता है, लेकिन चलते 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 फिर उसका जहन कुछ खराब होता है और इस तरफ दुनिया खींचती है, बस उधर माइल हो जाता है। यही जो मैदाने तबाह है, तबीयत जो उसका उस तरफ जो उसकी तबीयत झुक जाती है,
اس کو झुकाने से, उस तरफ माइल होने से बचाना, ये कहाँ पे हमको मिलता है? ये दरबार औलिया में मिलता है। हजरत मौलाना आज़म गाची रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में, उनके जलसे में और उनके जो भी जहाँ भी ये प्रोग्राम जिस जगह में होता है वहाँ पे ये सारी असबाब, ये सारे हम मिलते हैं। हमारी ये बातें हमको वहाँ से आगाह करती हैं। दुनिया में हमें खो करके नहीं रह जाना, रहेंगे हम दुनिया में, लेकिन दुनिया को अपने अंदर हम दाखिल नहीं करेंगे। हम दुनिया के अंदर रह करके दीन का सारा काम हम करेंगे, आखिरत की तैयारी करेंगे, और आखिरत की तैयारी कर करके फिर हमको एक दिन तो एक दिन जाना है। किसी न किसी बहाने से हमें जाना है। किसी को जो है फ्लू लग जाता है, किसी को कॉलरा हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। जिसका जो बहाना लिखा हुआ उस बहाने से इंसान वो चला जाता है। लेकिन हमारा असल मकसद हर वक्त यही होना चाहिए कि हमें यहाँ से कुछ करना, हमें यहाँ से सफर करना। जब सफर करने का जब इरादा होगा और हर वक्त ये ध्यान में रहेगा और ख्याल रहेगा, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों से बचा करके भी रखेगा। जब गुनाहों से हमें बचाएगा तो नेकी की तरफ इंसान माइल होगा। आप उमूमन देखेंगे जब इंसान की जिंदगी जब 50 से ज्यादा जब होने लगती है तो उस वक्त में उसका ध्यान जो है इधर दीन की तरफ होता है। उमूमन आप देखिएगा मस्जिदों में देखिएगा कि वहाँ पे जितने बूढ़े बूढ़े लोग हैं एकदम पहली सफ में जाकर के बैठे रहेंगे और वक्त से पहले जाके बैठे रहेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे उनका और कोई काम काज नहीं है। तमाम काम काज वो छोड़ छाड़ करके टाइम हो गया है नमाज के लिए, वो पहले वहां पहुंच जाएंगे। ये ख्याल सिर्फ बूढ़ों के अंदर नहीं होना चाहिए। बूढ़ा इसलिए चला जा रहा है, वो सोच रहा है कि अब तो मेरे चल चलाओ का वक्त है, अब जितना दिन बचा है हम जाके अल्लाह के घर में तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और जाके नमाज की पाबंदी करें। और जब यहाँ से हम जाएं तो लोग हमें नमाजी भी जाने और हमें परहेजगार भी जाने कि नमाज की पाबंदी भी करता था, हर तरह से पढ़ता था, मेरे लिए दुआ खैर भी, और अच्छे लोगों की सोहबत भी हमें नसीब हो। यानी वहाँ जो लोग जो जिस जगह जहाँ पर हैं, इमाम हैं, मुअज्जिन हैं, नेक लोग हैं और नमाजी लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं अच्छे लोग हैं, इन लोगों के साथ हमारा हश्र हो। ये सारे लोग जनाजे की नमाज में शिरकत करें। मौत का खौफ उस वक्त इंसान को सताता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दरबार हक्कानी अंजुमन में जब बच्चा कदम रखता है उसी वक्त वो मौत की याद शुरू कर देता है, कहता है चल बसेंगे एक दिन हम भी इसी सूरत से, आखिर फना आखिर फना आखिर फना आखिर फना। ये जो ख्याल है उसका बचपन से उसके दिल दिमाग में बैठा हुआ रहता है। तो ऐसा आदमी क्या है कि गुनाहों में डूबता नहीं है और भटकता नहीं है, वो बचा करके रहता है। एक बात है। दूसरी बात ये कि मुर्शिद के मजलिस का फैज़ व बरकत है, और तीसरे माँ बाप की दुआ है। ये जो सारी चीजें हैं इनकी वजह से इस मजलिस में आने वाला शख्स इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुमराह नहीं होगा, बद्दीन नहीं होगा, बल्कि वो गुमराही से, बद्दीनी से, कुफ्र से, दलालत से वो बच करके रहेगा। और इसके साथ ही साथ अपने अकायद को भी सही तौर पर, जो अल्लाह के वलियों का जो अकीदा है उस अकीदे पर वो काबू गामजन रहेगा, उसी पर वो अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करेगा। ये सारी चीजें जो है हमारे लिए एक बेहतरीन अमल का एक नमूना है, और इसी नमूने में हमको हमेशा इस पर देख करके, इसको सामने में रख करके हमें इसकी अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। और अपनी जिंदगी को लहव लईब में नहीं, खेल कूद में नहीं हमें जिंदगी गुजारना, हमें सब कुछ करना है। यहाँ जब हमारे अल्लाह ने हमें पैदा किया तो पैदा करके अब उसके बाद एक उम्र होती है जो आदमी बच्चा जो है सीखता है और कुछ बोलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके और कुछ पढ़ना शुरू करता है। तो पढ़ने की जिंदगी, और फिर पढ़ करके फिर जब 10 साल का 7 साल का होता है तो माँ बाप नमाजी होते हैं, बच्चा को भी नमाजी बनाने की कोशिश करते हैं। फिर 11 साल 12 साल में बच्चा को पाबंद कर देते हैं, और उस वक्त में फिर अगर बच्चा नहीं पढ़ता है नमाज तो ऐसी हालत में फिर उन्हें मारने की इजाजत भी दे दी गई कि उसे मार करके खड़ा कीजिए, कहाँ, नमाज में। वहां भी अगर आप छोड़ देंगे तो आप पकड़े जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, अगर उस वक्त भी हम छोड़ेंगे, माँ पकड़ी जाएगी। और उमूमन ऐसा देखा जाता है
कि नमाज की पाबंदी के सिलसिले में माँ और बाप इन दोनों का नमाजी होना बहुत ही जरूरी है। अगर माँ बाप में से कोई एक अगर बेनमाजी होगा तो बच्चे भी नमाज के पाबंद नहीं होंगे। इन चीजों को अच्छी तरह से हमें देखना है और अच्छी तरह से हमको बहुत ही प्यार से समझाना है। जाहिर है कि आपको याद होगा जो हमारी माएँ और बहनें हैं एक हड्डी से पैदा हुई हैं और इनके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से। तो बाईं पसली बताया जाता है कि ये बाईं पसली क्या है, टेढ़ी होती है। तो ये टेढ़ापन इनकी फितरत है, इनको सीधा करना बहुत मुश्किल है। पूरी तरह से आप सीधा भी नहीं कर पाइएगा। अगर सीधा करने जाइएगा तो टूट जाएगी हड्डी और अगर छोड़ दीजिएगा तो और बेंट होती चली जाए और टेढ़ी होती चली जाएगी। इसलिए छोड़ना भी नहीं है और कड़ा करके उसको ताकीद भी नहीं करनी है। बहुत ही नरमी के साथ सलूक, बिल्कुल बच्चों सा जैसे बच्चों के साथ सलूक कीजिए ऐसे ही माँ बहनों के साथ सलूक करना है। और इस तरह से उनको समझा के, बुझा के, लालच दे के, शौक दिला के, जैसे भी हो उनको जब ठीक रखिएगा बच्चे भी ठीक रहेंगे। तो बच्चों को ठीक रखने के लिए माँ बाप का सही होना और उनका सही तौर पर जिंदगी गुजारना, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, नमाज वजीफे का पाबंद होना, तकवा, परहेजगारी, खास करके खाना पीना। छोटे से स्कूल में जब बच्चा जाए वहीं से उसको ताकीद कीजिए। चॉकलेट है, ये है, वो है, जो स्कूल से मिलता है, कभी साथियों ने दिया, कभी नाश्ता शेयर किया। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं उन सबको शुरू से ही जब आप गाइड करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक उम्र को पहुंचते पहुंचते बच्चा पूरी तरह गाइडेड हो जाएगा और वो बहुत ही अच्छा उसके अंदर में उसकी सलाहियत होगी। फिर खुद ही बचने की कोशिश करेगा, इसलिए कि उसको उस वक्त तक अकल आ जाएगी। और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा उसको बताते भी जाना, बताते रहना है सूद की खराबी क्या है, हराम माल की खराबी क्या है, हराम रोजी क्या है, उसका असर क्या है। ये सारी चीजें भी हमें बतानी। अगर हम नहीं बताएंगे तो बच्चों को कहां से आएगा, कैसे सीखेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग जितना भी जो कुछ भी करें, कोई भी नमाज पढ़े अपने साथ बुला ले, बच्चा उठे बैठे जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा, जैसे सिर्फ सजदा करे, रुकू करे, देखा करके ही करे, उसको उसी तरह से आपको करते रहना है, सिखाते रहना है। ये क्या है, ये शुरू में जिस तरह से आप नर्सरी है, केजी है, अपर केजी, लोअर केजी, इस तरह जैसे बच्चों को जो बच्चा भी बैठना सीखता, इसी तरह हमको दीन के तरीके पर चलाने के लिए बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक चीज सिखाते जाना। तो जब सिखाते जाएंगे धीरे धीरे करके उसके दिल में एक असर पैदा होगा। फिर ये कि अल्लाह क्या है, अल्लाह के रसूल क्या है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, उनका मज़ार पाक कहाँ है, मदीना कहाँ है, मदीना की अजमत क्या है और सुन्नत की अजमत क्या है, ये सारी चीजें, फराइज क्या है, वाजिबात क्या है, ये सारी चीजें भी हमें बतानी। जब हम ये समझ लीजिए कि माँ बाप जहाँ पर है तो उनका एक स्कूल दीन और दुनिया दोनों वहाँ पे सीखता है। स्कूल में जब हम पढ़ने के लिए जाएंगे तो हमें स्कूल में बच्चों को कोई दीन से कोई ताल्लुक नहीं। कब्र क्या है, हशर क्या है, कब्र में क्या सवाल होगा, क्या करना है वहाँ पे, हशर में क्या है, ये कहाँ स्कूल में नहीं पढ़ाई होगी। ये पढ़ाई होगी तो मदरसे में पढ़ाई होगी। और जो मदरसे में पढ़े हैं या फिर जो दीन की मजलिस में जैसे हम लोग यहाँ शरीक हैं, हम लोग को जो कुछ भी आता है अपने बच्चों को धीरे धीरे करके एक बात, दो बात, तीन बात करके हमको सिखाना। जब हम सिखाते रहेंगे बच्चों को उनके दिमाग में बिठा देना। जिस तरह इस मजलिस के बारे में हजरत ने क्या फरमाया, हुजूर किबला ने यही फरमाया, फरमाते चले आए। तीसरे हुजूर किबला, तो पहले हुजूर किबला से लेके आज तक पांचवें हुजूर किबला तक सबों ने एक ही बात कि तुम लोग जब आओ मजलिस में तो अपने बच्चों को भी लेते आओ, बच्चों को कम से कम दिखला दो। कब मौत का परवाना आ जाता है, कब हमारा टिकट यहाँ से कट जाता है, कब जनाजा हमारा उठ जाता है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए एक दिन भी अगर बच्चे को दिखा देंगे हम ये रास्ता और ये जगह, तो इंशाअल्लाह जब वो बड़ा होगा तो कभी वो सोचेगा कि मेरा बाप फला जगह जाता था, हम भी वहां जाएं। और दूसरी बात ये कि आज के मामलात में जो इल्म का बहुत ज्यादा, जहाँ इल्म को बिखेरते रहते हैं, हदीस को जहाँ बहुत ज्यादा समझाते रहते हैं, कुरान को समझाते हैं। कुरान सभी समझता, क्या आर्य समाज वाले कुरान नहीं समझाते क्या? और दूसरे लोग जो हैं वो नहीं समझाते। हमने तो देखा है कि जो और बड़े बड़े लोग जो हैं पॉलिटिशियन, वो लोग जो हैं कुरान को लेकर करके दलील बना देते हैं, कुरान में ये लिखा, कुरान में वो लिखा। तो ऐसे लोगों के बारे में हम क्या जाएंगे इल्म वहां सीखने के लिए जाएंगे? इल्म का वहां से मिलेगा।
इल्म हमें वहां से मिलेगा जहां से हमें सही अकीदा मिलेगा, जहां से हमें सही तालीम मिलेगी, जहां से अल्लाह की मार्फत मिलेगी, जहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत मिलेगी, जहां से हम उसके दोस्तों की मार्फत हासिल कर पाएंगे, वहां से हम इल्म हासिल करेंगे। इसीलिए खानकाह बहुत है लेकिन हर खानकाह में नहीं जाते। हमें बहुत सारे उलमा हैं लेकिन उलमा में आपको पहचानिए, जितने भी और भी दूसरे लोग हैं जो टीचर्स हैं, उन टीचरों में कोई अच्छा पढ़ाता है, कोई थोड़ा सा कम अच्छा पढ़ाता है, कोई बहुत ही क्लियर पढ़ाता है, कोई साफ साफ पढ़ाता है। तो जो जैसा सब्जेक्ट का मालिक होता है उससे उसी तरह से हमको पेश आना और उससे वैसा ही हमको सीखना चाहिए। और इस तरह से हम मुर्शिद की जो इजाजत है कि आप जहाँ चाहिए जो चाहिए पढ़ते रहिए, लेकिन दरबार को न छोड़िए, दरबार में आते रहिए। यहाँ आना है किस लिए? आपके रूहानी तरबियत के लिए, हमारी रूहानी तरबियत के लिए, हमारी जिंदगी जो आखिरत की जिंदगी है उसको बनाने के लिए, संवारने के लिए हमें इस मजलिस पाक को पकड़ करके रखना है। और इसको उस वक्त तक पकड़ के रखना है जब तक हमारी आंख खुली है, और जब हमारी आंख बंद होगी उसके बाद इस मजलिस में कौन आएगा? जो हमारे बच्चे हैं वो आएंगे। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया कि जिन लोगों ने दीन को लहव लईब बना लिया और दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाल दिया, दुनिया की जिंदगी में धोखे में डाल दिया, तो उस दिन जब कयामत का दिन जब होगा तो ऐसे लोगों को हम भुला देंगे जिस तरह इन्होंने मुझसे मिलने का जो ये दिन है उस दिन को भुला करके रख दिया था। उस दिन मिलने के दिन यानी मुलाकात के दिन, हश्र के दिन, कयामत के दिन कि अल्लाह से हमारी मुलाकात होगी। किस लिए? अल्लाह से मुलाकात जो होगी किस लिए होगी? सवाल और जवाब होगा। और सवाल और जवाब जब होगा तो उस वक्त हमें क्या जवाब देना है, क्या हमें कहना है, हमने क्या नेकी की है, क्या हमने बदी की है, जिंदगी कैसे गुजारी है, जितने दिन गुजारी है हमने जिंदगी यहाँ पे, वो तमाम जिंदगी का हिसाब व किताब हमें अल्लाह के सामने पेश करना है। जब हम उसको पेश करेंगे उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फिर हमें मार्क्स देगा। हमें मार्क्स दे करके जैसा हमारा फैसला होगा वैसा अल्लाह तबारक व तआला बताया था एक बार कि इसी तरह से जब वहाँ पर सवाल और जवाब होता रहेगा, सवाल और जवाब में हमारे नाम आमाल जब हाथ में दिए जाएंगे, दाहिने हाथ में नाम आमाल, बाएं हाथ में नाम आमाल, तो वहाँ जो ग्रुपिंग जो होगी ये ग्रुप सिर्फ दो ही होगा। एक नमाजी का ग्रुप होगा, एक बेनमाजी का ग्रुप होगा। एक एक ईमानदार का ग्रुप होगा, एक बेईमानदार का ग्रुप होगा। एक रोजादार का ग्रुप होगा, एक बेरोजगार का ग्रुप होगा। जितने भी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले उनका एक ग्रुप, और जो शरीयत के खिलाफ काम करने वाले उनका एक ग्रुप। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुस्न अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, अपनी जान और ईमान समझते हैं, उनका एक ग्रुप। और जो उन्हें शत्रु समझते हैं नौज़ बिल्लाह या जो बेअदबी करते हैं उनकी शान में, उनका वो सब एक ग्रुप। तो इस तरह से जितने भी हैं दो हिस्सों में वहां पर बढ़ जाएगा, दो ही ग्रुप होगा, तीसरा नहीं होगा। इन दो ग्रुपों में जाहिर है कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को ऐसे ग्रुप में शामिल करे जो अल्लाह जिसे पसंद फरमाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे पसंद फरमाते हैं, अल्लाह के औलिया जिसे पसंद फरमाते हैं। तो हमारा जो ये है ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? ये हिदायत वाला ग्रुप, हिदायत का ग्रुप है। और ये कैसे है? इसलिए कि हमारा जो मामला है वो औलिया अल्लाह के साथ है। औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं, ताबईन तो ताबईन से मोहब्बत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु से मोहब्बत करते हैं। सिलसिला बसिलसिला नीचे से लेकर के ऊपर तक जब हम देखेंगे तो हिजबुल्लाह जो कहते हैं वो यही हिजबुल्लाह, यही अल्लाह का ग्रुप है। खुर्शीदा हुजूर किबला जो हमेशा बयान करते थे कि एक हिजबुल्लाह है, एक हिजबुल शैतान, दो ही ग्रुप है। तो हिजबुल्लाह जो है यानी अल्लाह का ग्रुप, वो यही ग्रुप है। और जो हिजबुल शैतान है इसके अलावा जो 73 दल आपने देख सुना और जानते हैं अच्छी तरह, तो एक ही जो होगा वो जमात, एक ही जमात होगी, एक ही दल होगा जो क्या राह रास्त पर होगा। अब बाकी इसके अलावा जितने भी होंगे वो सब के सब जो है राह रास्त पर नहीं होंगे, और एक जन्नती होगा, बाकी सब जहन्नमी होंगे। अब कौन होगा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो किताबों में जिस तरह से जिक्र है, जिस तरह से हमें जो तालीम दी जाती है या दी गई है, या जो हम लोगों ने तहकीक किया है, जो समझा है, अल्हम्दुलिल्लाह हक्कानी दरबार में जो जमात है ये जमात बरहक जमात है। और ये जमात ऐसी है कि अल्लाह इस जमात को पसंद फरमाता है। और कैसे पसंद फरमाता है? नमाज यहाँ पर, रोजा यहाँ पर, ज़कात यहाँ पर, हज यहाँ पर, तकवा यहाँ पर, सूद जो हराम है उन चीजों से बचना और सूद के शायबे से भी दूर रहना वो यहाँ पर, माँ बाप की खिदमत,
शौहर की खिदमत, बीवी की खिदमत, उनके एक दूसरे का आपस में जो लोग हैं उन एक दूसरे का ख्याल रखना, मजबूरों का ख्याल रखना, गरीबों का ख्याल रखना, जरूरतमंदों का ख्याल रखना, ये जो सारी तालीमात हैं हमारे दरबार की, हक़ानी अंजुमन दरबार की, तो ये सब तालीमात जो देखते हैं ये सब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, सहाबा इकराम की तालीमात हैं, ताबईन की तालीमात हैं, तबा ताबईन की तालीमात है, औलिया अल्लाह की तालीमात। इन्हीं तालीमात को लेकर के ये दरबार चलता है और इस दरबार से कितने सारे लोग हैं जो अल्लाह के वली बन करके यहाँ से दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को भी इसमें शामिल रहने की और शामिल रखने की तो हमें शामिल लोगों को शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा कानू भी आयातिना यजहदून, और हमारी आयतों को जो लोग की क्या करते इनकार करते थे, जो इनकार करते थे वो लोग, और जो लोग कि हमसे मिलना जो भुला दिया था, ऐसे लोग सबसे उस दिन जब मुलाकात होगी क़यामत के रोज, तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबसे पूछेगा कि तुमने हमें भुला दिया था, आज हम तुमको भुला देते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ख्याल जो रखते हैं, अगर अच्छा ख्याल रखते हैं, हुस्न ज़न रखते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे और कहेंगे ये हमारा उम्मती है। लेकिन क़यामत के दिन ऐसा भी शख्स होगा कि उस दिन वो शख्स नाम लेता रहेगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के सामने भी हाजिर होगा, और उस वक्त जो है वहाँ पर जब अल्लाह ताला अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु को बुलाएगा, मेरे प्यारे हबीब आइए, ये आपका उम्मती है, आप इसे पहचानते हैं, उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कर बैठेंगे कि इसे मैं नहीं पहचानता। खुदारा अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों में, ऐसी जमात में हमें शामिल न करे। कम से कम आमीन कहिए, आमीन कहिए, अल्लाहुम्मा आमीन। ऐसी जमात में हमें अल्लाह ताला शामिल फरमाए जिस जमात को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है, और वो अहले सुन्नत व जमात, और ये जो जमात है औलिया इकराम की जमात, सहाबी की जमात, ताबईन की जमात, तबा ताबईन की जमात, यही वो जमात है। हमेशा तीसरे हुजूर, चौथे हुजूर बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा जो है बयान फरमाते थे, इन्हीं बातों को हमेशा बयान करते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी जमात में रख कि जिस जमात का ताल्लुक अल्लाह से है, उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, ताबईन से है, तबा ताबईन से है, सहाबी से है, और शुहदा से है, और इसके साथ सिद्दीकीन से है। इन तमाम लोगों से जो हमारा ताल्लुक है, आप देखें हम लोगों को जब इस तरह से सामना जब होता है तो हम लोग यही दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हमें ऐसे ही जमात में रहने की तौफीक अता फरमाए, और अपने बच्चों को भी इसमें हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुरूद शरीफ हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु अन्हा, मैं 10 मिनट और टाइम लूंगा। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, जितने भी औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनसे राजी हो गया है, ये अल्लाह से राजी हो गए। हजरत राबिया के लिए भी अगर हम कहें कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए, तो उसी को हम अरबी में कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व रज़वान। इस तरह से हम कहते हैं। तो हजरत राबिया का जो एक इबादत का जो मामला है, वो मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी माएँ बहनें बहुत सी हैं, कम से कम उस वाक़े को सुन लें। हजरत राबिया जब इबादत करती थी और सो जाती थी, सोने के वक्त में क्या होता था, एक मर्तबा चोर घुसता है उनके घर पे, और घुस करके सारा सामान जो है इकट्ठा करके एक गट्ठर में बांध लेता है, बांध कर लेकर के यूं चलता है, जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है वो चोर अंधा हो जाता है, रास्ता नहीं मिलता है। जब रास्ता नहीं मिलता फिर वो रख देता है, वो गठरी रख दिया, रख करके फिर थोड़ी देर जब देख रहा है तो आंख उसकी आ गई, दरवाजा दिख रहा है, फिर निकलने की कोशिश करता, फिर नाबीना हो जाता। इस तरह से कई मर्तबा उसने कोशिश की। हर बार यही मामला जब पेश आया तो आवाज आई, उसको एक आवाज ऐसी आई, अल्लाह तबारक हातिफ गैबी उसे कहते हैं कि राबिया सो रही है, राबिया का खुदा नहीं सो रहा है, राबिया का अल्लाह नहीं सो रहा है। इसलिए जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है।
جس نے اللہ سے محبت کی ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ رابعہ نے مجھ سے محبت کی ہے، میں رابعہ سے محبت کرتا ہوں۔ رابعہ کے سارے سامان کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اس لیے اس کی کوئی چیز بھی تم لے کر کے چوری نہ کر سکو گے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا بھی واقعہ ہے نا، 2-3 واقعات ہیں، ان میں سے محبت کے متعلق اور عشق کے متعلق جو بات ہے، عشق تو آج بھی لوگ کرتے ہیں، محبت آج بھی لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں، لیکن ان لڑکے لڑکیوں کا محبت کرنا اور اس طرح سے بے جا طریقے سے آج کا ڈریس بھی، اور مسلمان لڑکیوں کا ڈریس، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایسا ہے کہ اپنے آپ کو وہ سمجھ رہی ہیں کہ کچھ اگر 2-4 انگریزی انہوں نے سیکھ لیا یا چند کلاس اگر پڑھ لیا تو پڑھنے پر وہ کیا سمجھنے لگتی ہیں کہ ہم اس دنیا سے کیا الگ ہو گئے اور دوسری دنیا میں ہم چلے گئے۔ اپنا ڈریس، چھوٹا لباس، چھوٹا کپڑا اس طرح سے پہن کر کھلے سر اتنی نمائش اپنے آپ کو کرتی ہیں کہ بہت ہی ایڈوانس ہے، اپنے آپ کو اتنا ایڈوانس بتانے کے لیے شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہیں، قرآن کے خلاف کرتی ہیں، حدیث کے خلاف کرتی ہیں، اپنے ماں باپ کے خلاف کرتی ہیں۔ ان چیزوں کا ماں باپ بھی اگر ہے دیندار تب تو اس کو لگے گا، لیکن اگر دیندار نہیں ہے تو کبھی نہیں لگے گا، بلکہ وہ فخر محسوس کرے گا۔ ابھی ایک نیا ڈریس نکلا ہے، مجھے معاف کیجیے گا کیونکہ میری عادت ہے اور اپنے حالات سے مجبور ہو کر کے مجھ کو بولنا ہی پڑ جاتا ہے، یعنی میرے منہ سے نکل ہی جاتا۔ ابھی ایک ڈریس نکلا ہے، ہاف ڈریس، ہاف پینٹ، یہ ہاف پینٹ بڑی بڑی لڑکیاں، ابھی چھوٹی لڑکیاں ہیں، چھوٹی لڑکیوں کو پہنائے جا رہے ہیں، ابھی پہناتے یہ چھوٹی لڑکیاں جو مردوں کا لباس جو ابھی سے پہننا شروع کریں گی، یہ دھیرے دھیرے جب بڑی ہوں گی تو ان کا حال کیا ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے علاقے میں ایک لڑکی کو بہت ہی چھوٹی تھی اور اس کو ہمیشہ پینٹ شرٹ پہنانا شروع کر دیا، جب بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، اس وقت بھی دیکھ رہے وہی پینٹ شرٹ، اس کے ہاتھ میں، اس کے حصے میں لگ رہا کہ کرتا پاجامہ نہیں آیا، دوپٹہ نہیں آیا۔ تو یہ کیا ہے، جو بچپن سے جیسے عادت اس کی لگائی جائے گی ویسے ہی عادت وہ اختیار کر جائے گی لڑکی۔ اس لیے ہمیں پردے کا، پوشیدہ کا ہمیشہ اس کو بتاتے رہنا ہے، اپنی بیویوں کو بھی ہمیں بتانا، اپنی ماں بہنوں کو بھی ہمیں بتانا ہے پردہ اور پوشیدہ۔ اچھا، اور اس کے ساتھ پردہ پوشیدہ ہم بہت رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہماری آواز بلند اگر ہوتی ہے، آواز بھی پردہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کی آواز جو ہے وہ بھی پردہ ہے، عورت ہے اس کو بھی ہمیں پردے میں رکھنا ہے۔ عورتوں کا ایک بھی یہ جو چول جس کو کہتے ہیں، یہ چول کھول کر کے غسل کرتے ہیں، غسل کر کے اور پانی یہاں سے ٹپک رہا ہے، جلدی چلی جا رہی ہے، ادھر دبائے ہوئے ادھر دبائے ہوئے، ہاتھ میں یہ دے، جلدی کتنا امپورٹنٹ، کتنی عظیم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پیچھے ڈال دیا، قرآن کی تعلیم کو پیچھے ڈال دیا، اپنے بڑے لوگوں کی تعلیم کو پیچھے ڈال دیا، ڈال کر کے بڑے فخر کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے خوشبو لگا کے، خوشبو کا مسئلہ دیکھیے، خوشبو لگا کے اتنی خوشبو ملتی ہیں اور ایسے خوشبو کہ اگر اس راستے سے گزر جائیں، یہاں سے وہاں چلی جائیں تو سارا راستہ خوشبودار ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ آپ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے بھر کو آپ خوشبودار بنا کے چلے جاتے تھے، جس راستے سے جاتے وہ خوشبو مہکتی تھی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، آپ کے جو پسینے مبارک تھے اس پسینے مبارک میں بھی خوشبو تھی۔ ایک جگہ حضرت غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ سو رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر پہ، اور اس وقت جو جس چیز پر سوئے ہیں وہ چمڑے کا بستر ہے۔ آپ پسینہ، گرمی کا دن ہے، پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہے، پسینہ جیسے ہی تمام پسینے کو ایک بوتل میں حضرت ام سلمہ نے کیا کیا، اس میں لے کر کے ڈال کر کے اکٹھا کر دیا، ایک بوتل بنا لیا، اتنا پسینہ آیا۔ اور اس پسینے کو کیوں اکٹھا کیا؟ وہ پسینہ خوشبودار پسینہ تھا، ہماری طرح آپ کی طرح بدبودار پسینہ نہیں تھا۔ آج بھی دیکھیے کسی کا پسینہ بہت بدبو کرتا ہے، کسی کا پسینہ کم، کسی کا زیادہ، لیکن رسول انور علیہ السلام ایسے بے مثال نبی ہیں، ایسے اعلیٰ نبی ہیں، ایسے بالا نبی ہیں کہ ان کا پسینہ مبارک بھی جو تھا، وہ پسینہ مبارک کی جو خوشبو ہوتی تھی، وہ خوشبو جب انہوں نے اکٹھا کر لیا ایک شیشی میں، اس کے بعد اس چیز کو جو بھی آتا اس کو وہی لگا دیتی تھی، جب وہ لگاتی وہ بھی خوشبودار ہو جاتا، اور جس کو لگاتی یک پشت اس کا خوشبودار بچہ ہوتا تھا، خوشبودار بچہ ہوتا تھا۔ یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ تو ایسی خوشبو یہاں دربار کے
बारे में हम आपको बताएं कि इस जगह में खुशबू का रिवाज नहीं है। एक साहब को मैंने कहा कि भाई खुशबू वहाँ पर जो है आप क्यों नहीं लेकर के बेचते हैं, कुछ आपकी आमदनी हो जाए। उन्होंने कहा नहीं एखाने खुशबू मना है, एखाने ये सब चलबे ना। अरे चलबे ना, ये तो सादगी, चूंकि सूफियों का दरबार है, सूफियों के दरबार में जाहिर है कि यहाँ तो बिल्कुल खुशबू अपने आप को बना लो, खुशबू बाहर से लेकर के इस्तेमाल ना करो। बहरहाल जो मसला था उसके लिए हम ये जिक्र कर रहे हैं। तो बाल खोल चूल खोल करके चलना, खुशबू ऊपर से मल करके चलना, टक 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 करके वो सैंडल पहन करके चलना और छोटे लिबास पहनना, ये सारी जो अभी जो हालात ये सब कयामत की अलामत हैं। और जब चलती हैं तो चाहे लोग खुशबू से आह आह करते रहें, लेकिन फरिश्ते तो लानत जरूर भेजते हैं कि लानत हो तुम पर जो तुम इस तरह से चल रही हो। तुम्हें अल्लाह ने लड़की बनाई, तुम्हें पर्दे के लिए बनाया, पर्दे में रहने के लिए बनाया, और तुम बेहयाई और बेशर्मी का नमूना बनकर तुम चल रही हो। तुम ऑफिस जा रही हो, तुम कहीं भी जाओ तुम्हारे लिए। लेकिन ये सारा मसला, चाहे हम जितना भी तरक्की याफ्ता हो जाए, जितने बड़े एजुकेटेड हो जाए, लेकिन हमें इन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इन चीजों को नहीं रखेंगे तो हमारा शरीयत से क्या ताल्लुक, हमारा मुसलमानी से क्या ताल्लुक, हमारा इस्लाम से क्या ताल्लुक, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे। हमें कुछ तो हमें दिखाना है। हजरत राबिया का ये जो दूसरा वाकया वही वाकया है कि हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो क्या करती हैं, एक मर्तबा लेकर के चलती हैं, हाथ में आग एक हाथ में पानी, और लेकर के जाती हैं क्या, मैं आज जन्नत को जला दूंगी, दोज़ख को बुझा दूंगी। ये चिल्लाते हुए चली जा रही हैं। हजरत हसन बसरी आपके मुरीद पीर थे, वो हजरत में मुलाकात हो गए। जब मुलाकात होते हैं उस वक्त में उन्होंने पूछा क्या हुआ राबिया, कहाँ चली जा रही हो। इस हाल में एकदम हजरत राबिया फरमाती हैं कि आज मैं जन्नत जला दूंगी और जहन्नम को सर्द कर दूंगी। क्यों करोगी ऐसा? बोले लोग ऐसे हैं कि कुछ इबादत करते हैं जहन्नम में जाने से, जहन्नम में जलने के डर से, और कुछ लोग इबादत करते हैं जन्नत की ख्वाहिश में, जन्नत के लालच में। सोचिए, ये सूफी का दरबार है, सूफियों की भी मजलिस है, यहाँ क्या दर्श मिलता है उस चीज को हमें देखना है। नमाज जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह के लिए हमें पढ़ना चाहिए। हम जब कोई नेकी करें तो अल्लाह के लिए, हम यहाँ हाजिर हुए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। यहाँ जब कोई नेक काम हम करें अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। लेकिन हमारा मकसद, अगर कोई भी नेक काम है लेकिन उसमें दुनिया अगर मफाद में आ जाती है, दुनिया मकसद अगर हो जाती है, तो ऐसी हालत में फिर हमारा वो खुलूस नहीं होता और उसमें वो बरकत भी नहीं होती है। तो ऐसी हालत में क्या है कि हम हजरत राबिया कहती हैं कि मैं जला दूंगी जन्नत को और बुझा दूंगी जहन्नम को। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं ऐसा क्यों करोगी? बोले ये वजह है। तो जब ये वजह है वहां से एक दर्श मिलता है, हमारी माँ बहनों को भी ये दर्श मिलता है कि हम सब भी पढ़ें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, ज़कात दें, हज करें, सब कुछ करें, लेकिन लिल्लाहियत, अल्लाह, हमेशा अल्लाह की रजा हमें चाहिए। जो अल्लाह की रजा चाहता है अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी हो जाता है। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उससे राजी हो जाता है, वो अल्लाह से राजी हो जाते हैं। ये हमें इन चीजों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। सूद जो इतनी खराब चीज है, इतनी जो एक मर्तबा नहीं 36 मर्तबा माँ के साथ जिना करने का जो गुनाह है और फिरौन और नमरूद के साथ उसका हशर होना है, ऐसी जो हालात है, सूद इतनी खराब चीज, उस पर हम लोगों को उससे बचना, जो हमेशा मुर्शिद इसकी ताकीद करते रहते थे और आज भी ताकीद करते रहते हैं, इन चीजों से हमेशा दूर रहने की अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक अता फरमाए। एक नया फितना क्या है कि जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं, बच्चे हमारे पढ़ते हैं, तो वहां पे एक अकाउंट खोला जाता है। वहां जो अकाउंट खोला जाता है जीरो बैलेंस पे अकाउंट या 100 रुपया दे करके अकाउंट, वहां जब खोल लिया गया, अब वहां पर गवर्नमेंट का जो पैसा आएगा, कुछ पैसा हमारा वहां जमा है, 100 रुपया हो, 50 रुपया हो, 200 हो, जो भी हो, लेकिन एक वक्त आता है जो 3 महीना 4 महीना के बाद उस पर इंटरेस्ट आता है। जब इंटरेस्ट आया, चाहे वो 2 रुपया आए, चाहे वो 4 रुपया आए, 1 रुपया भी अगर इंटरेस्ट आता है तो इंसान के लिए घातक है, इंतहाई डेंजरस और खतरनाक है। उस पैसे को हमें निकालना और निकाल करके क्या है कि गोश्त खरीदें और चिड़कौओं को हम खिला दें। इस पर कोई किसी किस्म का कोई भी मेल मिलाप नहीं, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं, चाहे लोग जितना भी दलील पर दलील मांगे। मैंने सुना कोई कहता है कि उर्सकुल की दलील क्या है, उर्सकुल की दलील क्या है? अरे उर्सकुल की दलील इतने जमाने से, आज तकरीबन 150 साल से उर्सकुल के बारे में बताया जा रहा है, आज
पर मैं इंशाअल्लाह ताला तफसीली गुफ्तगू कर सकता था, और भी सारे उलमाए इकराम हैं और उनसे भी बहुत सारी बातें सुनी गई हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इससे तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ पर्दा का जो ताल्लुक है, कम से कम ये खिमार जो हम लोग जो ढकते हैं, हम लोग को इसकी चीज जो औरतें हैं, ये सारे जो बाल एक चूल भी अगर खुला हुआ है तो उस पर भी हमारे लिए क्या है कि शर्म की बात है, हमें उसको छुपाना है, क्योंकि वो भी औरत ही है। और पर्दे, इसके चूल के बारे में भी ये बताया गया कि जो लड़कियां, जो औरतें चूल खोल करके चलती हैं, बाल खोल करके जो चलती हैं, ऐसी लड़कियों को क़यामत के रोज वो सर के बालों को, चूल को पकड़ कर घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हमें ताज्जुब होता है कि इतनी हदीस जो कुछ भी जो हम लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इसके बावजूद भी हमें एक जर्रा भी डर नहीं लगता, एक खौफ नहीं होता कि हम कम से कम ऐसी चीजों पर अपनी पाबंदी लगाएं। अपने बच्चों की खुशी हमेशा रखिए, लेकिन याद रखिए शरीयत इस्लामिया के बाहर न जाइए, शरीयत के मुताबिक हमें अमल। क्या रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हसनैन करीमैन को खिलाया नहीं, उनको क्या घुमाया नहीं, क्या उनको प्यार नहीं किया? किस तरह से प्यार किया? ऐसा प्यार किया कि जब आप सजदे की हालत में रहते थे, नमाज पढ़ा रहे हैं, जमात के साथ हैं, लेकिन हजरत हसनैन करीमैन पीठ पर, आपकी पीठ मुबारक पर सवार हो जा रहे हैं, पीठ मुबारक पर सवार हो रहे हैं, तो उस वक्त आप हटा रहे हैं? नहीं हटा रहे हैं। जब कोई हटाने की कोशिश करता है, इशारा करते हैं हाथ से कि मत हटाओ, रहने दो। जब वो खुद से हट जाते तब जाकर के फिर आप सजदा दूसरा करते और पूरी नमाज करते। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी जो गाइड किया, जो करता था, फिर उन्होंने जो तरीका किया हमें भी वैसा है। आज भी अगर हम सजदे में रहें, हमारा छोटा बच्चा अगर पीठ पर आ जाए तो क्या करेंगे? हम उठ जाएंगे, हम उठ कर वो बच्चा कहीं गिर जाए। बच्चों का कितना ख्याल रखा गया है, बच्चों की परवरिश का ख्याल रखा गया है। तो इस तरह हम तमाम मुसलसल अमल करते रहेंगे और अल्लाह ताला इसकी हम सब लोगों को तौफीक अता फरमाए। और जगह जगह मुर्शिद का एक बयान कि जगह जगह शैतान का अड्डा बना हुआ है, एक जगह शैतान जो है वो बैठा हुआ है हमारे ईमान को लूटने के लिए। इसलिए बहुत ही होशियारी के साथ हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है, देख करके कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ईमान को लूट डाले। हर जगह जहर भी आप जाएंगे, इसलिए बहुत सोच समझ करके हमें पीर भी पकड़ना चाहिए, बहुत सोच समझ करके हमें कुरान और हदीस का इल्म भी हासिल करना चाहिए। दर्शन जी ठीक है, दरूद शरीफ पढ़ना।